Good morning, everybody. I am Abhyanand, Gyan Wonder classes. Today we are describing a very important topic, which we can say on demand, as we can say that this topic is on today's highly demand about NEP, New Education Policy. Recently, MHRD, Ministry of Home Resource Department, accepted the new education policy for every student. So every student should know, they are curious to know what is new, what are the changes in the newly accepted education policy. So this video is very interesting for all students. For every students, either they are in a standard 1 or pursuing degree courses. So all are willing to know what are the changes. Is that beneficial for him or harmful for him? So without delay, I am starting to elaborate all the important points which is in new education policy. But there is a request, please watch this video till end and please like, subscribe and share this video, as I think you will be clear about all your problems, all your questions after watching this video till end regarding new education policy. So we are describing, these all are the point where our government want for a children just to strong. We will describe all these points later. We are describing starting. So the evolution of education policy. As we know, before describing anything, we try just to know all these things about it very clearly, starting from its beginning. So starting from its beginning, we are starting evolution of education policy. From where education policy from where started? So University Education Commission, which was on 1948 to 49. Later Secondary Education Commission 1952 to 53. After that, Education Commission 1964-66 under Dr. D.S. Kothari. Later on, National Policy on Education, that was on 1968. After that, 42 Constitutional Amendment 1976, education became in concurrent list. National Policy on Education, NP, that was on 1986. NP 1986 modified in 1992, Program of Action 1992, and which we are describing now, which we are learning now, which we are reading now, that is that started from here. TSR Subramaniam Committee Report, 27th May 2016. Firstly, the committee was made and submitted a report, but this report was not final. So later on, again one committee on the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan, that was formed in 31st May 2019, and he has started with all these committee members. This committee was a member of 5 people, 5 scholars, and finally 29th July 20, government accepted the proposal and will be passed in parliament with majority. So this was the history of education policy starting, and now important points which is included in National Education Policy 2020. So according to this new education policy 2020, MHRD, Ministry of Human Resource Department, will be renamed as Education Ministry. Now MHRD will be named as Education Ministry.
द सेकेंड वन इज 100% GR इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। मतलब कहने का मतलब कि 2030 तक हम लोग का जो लिटरेसी लेवल है वो 100% प्री स्कूल में 100% होना चाहिए। 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 50% रेशियो हम लोग का पहुंच जाए 2035 तक, जो कि अभी अप्रोक्स 26.5.4% है, जो कि अभी चाइना में 43% है और यूएसए की बात करें तो 86% है। इसका और एक मोटो है कि ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, मतलब जो स्कूल से आउट हो चुके हैं उसे फिर से बैक लाना है, फिर से स्कूल में उसको दाखिला करवाना है। द 10+2 सिस्टम विल बी डिवाइडेड इंटू 5+3+3+4 फॉर्मेट। वी विल डिस्क्राइब in elaborate in further slide. These are all the key points. Budget for education increase from 4.43% to 6%. Budget increase 4.43% up to now, but from now itself 6%. Focus on online education. ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ अ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। इसके हम शॉर्ट में अगर बात करें तो कहने का मतलब है कि अगर जब भी एक स्टूडेंट जब 12th पास करेगा तो ही विल बी मास्टर इन वन थिंग, आइदर दैट मस्ट बी ए म्यूजिक और एनीथिंग, बट ही विल बी ए मास्टर। कहने का मतलब कि इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ी फ़ायदा यही है कि आज तक जो प्रेशराइज से काम किया जाता था कि बंदे का मन है कि हाँ हम हिस्ट्री से हम कुछ करें, लेकिन विदाउट ऑफ पेरेंट, फैमिली, सोसाइटी, वो फोर्स होता था कि नहीं मुझे तुम्हें साइंस ही लेना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो वो अब नहीं है। अब हर लेवल पे असेसमेंट होगी, स्कूल में हर एक्टिविटी पे असेसमेंट होगी। अब जो असेसमेंट होगी नॉट ओनली ऑन रिटेन एग्जामिनेशन, तो इससे ये पता चलेगा कि बंदे में किस फील्ड में ही इज ईगर, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उस फील्ड को पकड़ के उसमें आगे काम किया जाए तो ही विल बिकम मास्टर। फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबुलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेज। कहने का मतलब कि आज के डेट में सारे लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश अगर एक बंदे को कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, साइंस नहीं आ रहा है, मैथ नहीं आ रहा है, दीज आर नथिंग इफ़ ही इज़ वेल नोन ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश उसकी पूरी तगड़ी है, मजबूत है, तो वो ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन फैमिली। तो ये पॉइंट इसी के लिए है कि हमारा जो लोकल लिटरेचर है, हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, इसका साइंटिफिक वोकेबुलरी है जो इंडियन लैंग्वेज का, उसे हम लोग इन्हेंस करेंगे। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अब कोई भी सब्जेक्ट किसी के साथ कंबाइंड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे हम लोग मैथ अगर ले लिए तो हम लोग बायोलॉजी अगर ले लिए तो मैथ हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये सब तरह का जो कंपल्सन था वो अभी डिमोलिश हो रहा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग लेटर डिफाइन करेंगे। बस इससे यही हम लोग बता सकते हैं कि अब कोई भी स्टूडेंट अगर 12th छोड़ता है, 12+1 इट मीन्स इफ़ अगर वो बीएससी बीए का फर्स्ट ईयर में छोड़ता है तब भी उसकी डिग्री वेस्ट नहीं जाती थी। पहले क्या था कि एक ईयर करके अगर छोड़ दिया तो फिर से अगर एडमिशन लेना है, फिर से उसे पढ़ने कुछ टाइम के बाद, तो फिर से उसको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसका एक क्रेडिट स्कोर बनेगा जो कि उसके गवर्नमेंट के डाटाबेस में अवेलेबल होगा और उसके बाद उससे आगे वो कर सकता है, या फिर उसी पे कुछ वैकेंसी ऐसे भी होंगे कुछ उसी पे अप्लाई करने का, तो उस पर भी वो अप्लाई कर सकता है। जो यूजी प्रोग्राम की बात है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो 3 से 4 साल की है, 4 साल की ही है। इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या है 4 साल में। पीजी प्रोग्राम 1 से 2 साल की है। पीजी के साथ जो हम लोग पीजी के बाद पीएचडी करते थे वो ख़त्म कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर या मास्टर डिग्री, ये दोनों को मिला के ये किया जा रहा है। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आने वाली है, अभी सारा इस पर डिस्कशन पे चल ही रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। अभी ये सब सारा क्लियर नहीं है, लेकिन सब ये प्रपोजल है, यही सब होना है। इसी को इलोबरेट करके और कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स लगेंगे और बनेंगे और ये आगे इम्प्लीमेंट होंगे। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यू, एमफिल अब नहीं होगा। ये मास्टर डिग्री लेने के बाद
क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये वही बात हो गई कि आपका जो भी असेसमेंट होगा उसके हिसाब से आपके जो क्रेडिट स्कोर होंगे वो गवर्नमेंट के डाटाबेस में, सॉफ्टवेयर में सेव होंगे और वो आप कभी भी उसके यूज कर सकते हैं, उससे आगे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल, दैट इज सिंगल एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल। ये कहने का मतलब है कि अभी तक सारे अलग अलग थे, एनसीईआरटी अलग थे, स्कूल स्टेट बोर्ड्स अलग थे, तो अब है कि अब एक ही रेगुलेटर मतलब एक ही बोर्ड से सारा कुछ हम लोग का चलेगा और उसके लिए एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक ही एग्ज़ाम से हम लोग सारे यूनिवर्सिटी में एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम के द्वारा हम लोग को एंट्रेंस मिलेगा वहाँ। ये सब लीगल और मेडिकल फील्ड को छोड़ के। टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, अ स्टेट विल प्रिपेयर दियर ऑन करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन एनसीईआरटी करिकुलम। कहा जा रहा है कि जो लोकल है उसको उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होगी, ये पावर होगी कि एनसीईआरटी को बेस बना के और उस कोर्स में स्टेट के लेवल का चीज़ जो स्टेट में है उसका भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, सो कि बच्चे वो जाने कि हाँ, और उसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं अगर वहीं की बात हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को लगेगा ना दिस इज़ अ क्यूरियस, तो उससे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। नेक्स्ट वन इज 3 लैंग्वेज टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड बाय अ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। कहा जा रहा है कि अभी तक हम लोग इंग्लिश हिंदी को मान रहे थे, इंग्लिश ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अब उसको मतलब कहा जा रहा है कि स्टेट का जो लैंग्वेज है, मदर जो टंग है, मदर लैंग्वेज है, रीजनल जो लैंग्वेज है, अब उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें अप टू 5th दैट वाज कंपलसरी। ऑल क्लासिकल लैंग्वेज विल बी वाइडली अवेलेबल इन अ स्कूल एज ऑप्शन लाइक संस्कृत, पाली, टीसी। मतलब ये सब कहने का मतलब कि जैसे संस्कृत है, पाली है, मैथिली है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिसमें कि ये पढ़ाई होगी और वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम रिजल्ट विल बी पब्लिश नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम बट विथ फुल असेसमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। कह रहा है कि जो अब एग्जाम होंगे, जो रिजल्ट पब्लिश होंगे, वो रिटन एग्जाम पे ही सिर्फ नहीं होगा। ऐसा पहले होता था कि रिटन एग्जाम के बेस पे रिजल्ट पब्लिश हो जाता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके होते थे जो समझते कम थे और रटते ज़्यादा थे। जिसके पास मेमोराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा था, जिसके पास रिमेंबरिंग कैपेसिटी ज़्यादा था, ही विल सिक्योर मोर मार्क्स। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उसकी असेसमेंट स्टार्टिंग से ही होगी, हर लेवल पे असेसमेंट होगा, टीचर के द्वारा असेसमेंट होगा, स्टूडेंट के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा असेसमेंट होगा, हर एक्टिविटी का असेसमेंट होगा और उसके बाद उसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जिससे कि वो फाइनली एक्सेस्ड होगा और फाइनल उसको मार्क्स या जो भी कर सकते हैं पॉइंट मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड विल बी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, वही जो भी हम लोग डिसाइड किए, हम लोग डिस्क्राइब किए कि इसी तरह का हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। नाउ NIUS एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ओपन स्कूल विल ऑल्सो ऑफर ग्रेड 3, 5, 8 ऑफ देयर फॉर्मल स्कूल सिस्टम। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अपर क्लासेस में ही NIUS के थ्रू और स्टेट ओपन स्कूल के थ्रू हो रहा था, अब नीचे वाले स्टैंडर्ड में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होंगे। देखिए, सबसे क्यूरियस बात यह है कि सारे स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं, एवरीबॉडी शुड नो कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और किसके लिए ये है ये सिस्टम। तो हम लोग बहुत क्लियर बताते हैं कि ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2021 टू 2022 सेशन, मतलब अगले सेशन से 21-22 सेशन से अर्ली चाइल्डहुड का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8 इज फुल्ली इफेक्टेड विथ दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो अभी 9th और 10th में है उसके लिए अभी पॉलिसी नहीं बनी है, अभी उस पर वर्क चल रहा है, उसका भी बहुत जल्दी क्लू आएंगे। लेकिन अभी तक का जो पॉलिसी है वो स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 8, मतलब जो अभी 8th क्लास में है उसका सारा कुछ क्लियर है। जो अभी 8th में है वो अगले साल मतलब 2021-22 में 9th में जाएंगे और 22-23 में 10th में जाएंगे। तो जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो एग्जामिनेशन होंगे वो 2022-23 में 10th का बोर्ड होगा और ठीक उसी प्रकार 11th में जाएंगे
23-24 में और 24-25 में ये 12th में जाएंगे, तो जो 12th का बोर्ड होगा वो 24-25 में जो अभी 8th स्टडिंग स्टूडेंट है उसके लिए फुल्ली एप्लीकेबल है। और जो 9th-10th वाले हैं उसका अभी वर्क चल रहा है, वेरी सुन दैट विल ऑल्सो डिक्लेयर। अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से स्टूडेंट, मतलब किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या उसका हार्मफुल है, क्या क्या बेनिफिशियल है, सब पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एलोबरेट करके। तो अभी तक जो चल रहा था एग्जिस्टिंग 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर, अभी तक ये एकेडमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। तो 10th 10 साल का था, पहला से 10वां तक पढ़ना होता था, स्टैंडर्ड क्लास 1 to क्लास 10। एज उसमें जो निर्धारित थे 6 to 16, 6 से 16 साल तक के थे, 10 साल क्लास 1 से क्लास 10 तक। उसके बाद 2 साल का 11, 10, 12 था जो कि 16 से 18 साल तक का था। अब इसमें चेंजेज आए, क्या चेंज आया है, तो नया जो सिस्टम बना है वो 5+3+3+4 एकेडमिक स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई, 5+3+3+4। अब इसे हम लोग देखते हैं। तो जो इसे 4 भाग में बांटा गया है, 5 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 4th। तो पहला जो पार्ट है वो 5 साल में बांटा गया है। तो 3 इयर्स प्री स्कूल, जिसके एज होंगे 3 to 6 इयर्स, जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे उसको प्री स्कूल में डाला जाएगा। उसके बाद जो 2 साल होंगे वो क्लास 1 and 2, जिसके एज होंगे 6 to 8। इस में जो पढ़ाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे फाउंडेशनल कोर्स। हर टॉपिक को हम लोग आगे एलोबरेट करेंगे। फाउंडेशनल कोर्स क्या है, प्रिपरेटरी कोर्सेज में क्या क्या है, मिडिल स्टेज कोर्स में क्या है, सेकेंडरी स्टेज कोर्स में क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो अभी बस ये हम लोग डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, आगे इसको एलोबरेट करके देखेंगे। सेकेंड वन इज प्रिपरेटरी कोर्स। इसमें क्या है, तो इसमें क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे होंगे, जिसके एज 8 से 11 साल निर्धारित किया गया है। ये 3 साल का होगा, ये प्रिपरेटरी कोर्स इसको बोला जाएगा। उसके बाद 3 साल का अगेन जो कि क्लास 6 to 8 स्टूडेंट होंगे, जिसके लिए एज निर्धारित किया गया है, प्रपोज्ड एज है 11 to 14 ईयर्स। ये मिडिल स्टेज कोर्स होगा। और उसके बाद ये 4 साल का कोर्स है जो सेकेंडरी स्टेज कोर्स बोला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 आ गया है। तो ये सेकेंडरी स्टेज कोर्स होगा, ये 4 साल का होगा, जो कि क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए होगा। इसमें एज होंगे 14 to 18 ईयर्स। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अभी हम लोग ने बोला था कि हाँ, सबको एक एक करके इलोबरेट करेंगे। तो अभी फाउंडेशनल कोर्स में हम लोग आ रहे हैं। फाउंडेशनल कोर्स क्या है, तो 3 इयर्स प्री स्कूल, जो हम लोग बोलते हैं प्री नर्सरी, LKG, UKG, जो भी हम लोग बोलते हैं, तो वो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे का है। फिर 2 साल का क्लास 1 and 2 है, जो कि एज 6 to 8 ईयर्स का है। इसमें क्या क्या दिया गया है, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE, प्रिपरेटरी क्लास वाटिका आंगनवाड़ी फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कहा जा रहा है कि ECCE के थ्रू, जैसे कुछ स्कूल बाल वाटिका हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र जो चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब है बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से जो कम छोटे बच्चे रहेंगे उसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये दोनों की देखरेख में उसका चलेगा। नो थियोरेटिकल, ओनली गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी एंड थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब इस क्लास में केवल पिक्चोरियल डायग्राम से पढ़ाया जाएगा, कोई थियोरेटिकल नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो। इसमें सिर्फ ऐसा पढ़ाई होगी जिससे कि अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो और थिंकिंग कैपेसिटी बच्चे का इंक्रीज हो। इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि रिड्यूस द लोड ऑफ बैग। जो बच्चे मतलब अपने वजन से ज़्यादा बैग का वजन लेके चलते थे, वो रिड्यूस होगा इस पॉलिसी से। द सेकेंड वन इज प्रिपरेटरी कोर्स। प्रिपरेटरी कोर्स इज फॉर क्लास 3 to क्लास 5th स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैन प्रीफर लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो ऑन देयर लोकल, रीजनल और मदर लैंग्वेज। मतलब 5th क्लास तक बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज, अपने लोकल लैंग्वेज, अपने मदर लैंग्वेज में ही कैन परस्यू देयर स्टडी। रिमूव कंपल्सन ऑफ इंग्लिश का कंपल्सन रिमूव कर दिया गया है। मेनली फोकस ऑन प्रैक्टिकल विच इंक्रीज देयर एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। मेनली फोकस प्रैक्टिकल पे किया गया है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, थ्योरेटिकल पे कम
फोकस किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही बंदे में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है। थियोरिटिकल ज़्यादा होने से आदमी में मेमोराइजिंग कैपेसिटी, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से आदमी में अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट वन इज मिडिल स्टेज कोर्स, जो कि क्लास 6 to 8। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, अब बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है क्लासेस के। अभी तक तो बच्चे के क्लासेस थे, अभी तक बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया गया, जो कि इम्प्रूवमेंट ऊपर वाले के द्वारा ही किया जाएगा, टीचर्स के, पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टूडेंट को भी समझना होगा और स्टूडेंट भी उसमें ये इंटरेस्ट लेके उसको करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे मार्वेलस पूरे NEP का है, जो कोडिंग स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छी पॉलिसी का पॉइंट है कि जो हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर जो कंप्यूटर कोई क्लासेस लेते थे, कंप्यूटर के कोई वोकेशनल कोर्स करते थे, तभी हम लोग जानते थे कि हाँ कोडिंग क्या होता है, या फिर हायर क्लासेस में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तब हम लोग जानते थे कि हाँ कोडिंग क्या होता है। लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया है कि फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 कोडिंग विल बी स्टार्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब कंप्यूटर का नॉलेज होगा, इससे जो इंटरेस्टेड है कंप्यूटर में वो बहुत अच्छे इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मोर फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा फोकस स्किल डेवलपमेंट में करना है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको मैथ ही पढ़ना है, आपको साइंस ही पढ़ना है। अगर आपकी इंटरेस्ट म्यूजिक में है, अगर आपकी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो आप उसको पढ़ो, आप उसमें अच्छा करो, आप उसमें बढ़ो। दैट इज़ हेल्पफुल एंड दैट इज़ बेनिफिशियल। You can become master on these topics. A small projects were given based on a skill. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की दिए जाएंगे जो कि स्किल पे बेस्ड हो। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा कोई प्रैक्टिकल दिया जाएगा जिससे कि डायरेक्ट लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस हो, मतलब चीज़ें को करके बच्चे सीखे कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, तो वैसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। स्मॉल इंटर्नशिप स्टार्टेड, मतलब कुछ छोटे छोटे जो इंटर्नशिप रहेंगे कि हाँ 1 महीना का मतलब क्लास हो गया, उसके बाद फिर 1 महीने का उधर इंटर्नशिप का कोर्सेस है कि जाके उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आदमी ले। कोई भी जैसे मेडिकल फील्ड में है तो जाके प्रैक्टिकल उसमें सीखे। इंडस्ट्रियल है, साइंस बिलोंगिंग है तो इंडस्ट्रियल मतलब जो कोई भी टेक्निकल में जाके वो इंटर्नशिप ले, उसमें सीखे, उसमें ये चीज़ को देखे। तो उससे क्या होगा कि आदमी में अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग कैपेसिटी इस्टेब्लिश होगी और वही जाके आगे इन्वेंशन करेगा, जिसमें कि आज इंडिया बहुत पीछे है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेकेंडरी स्टेज कोर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट की आंखें इसी क्लास में खुलती है। ये जो है नॉट अप टू नाउ, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि दैट क्लासेस फ्रॉम 9 to 12 इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर थ्रू आउट लाइफ। ये पूरे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस है। इसी के बेस पे हम लोग जो भी अपने लाइफ का गुजारा करते हैं वो इसी क्लास के बदौलत, इसी क्लास के मदद से हम लोग करते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी देना चाहिए। तो दिया है स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट सो दैट दे चूज देयर ऑन पाथ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक, हम लोग पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इसमें स्टूडेंट स्वच्छंद रहेगा कि उसकी अगर जो इच्छा है, उसका जो विल है, उसी के अनुसार वो सब्जेक्ट चूज करे, उसी के अनुसार वो अपना एक्सरसाइज बनाए, उसी के अनुसार वो अपना प्रैक्टिकल करे, उसी के अनुसार जिसमें उसकी इच्छा हो, जिसमें उसकी मन ज़्यादा लगता हो वही वो पढ़े और उसी में वो अच्छा करे। नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। मतलब किसी में कोई सेपरेशन नहीं है। अब कोई भी सब्जेक्ट आपस में ले सकता है जिसमें कि इंटरेस्ट हो। ऑल सब्जेक्ट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, दैट इज साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस होगा। एग्जाम विल बी ऑन सेमेस्टर वाइज। अब जो क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम होते थे, मंथली बेसिस पे एग्जाम होते थे, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड एग्जामिनेशन ओनली विल बी ऑन सेमेस्टर वाइज and will be allowed to appear on 2 occasions during any given school year, one main exam and one for improvement if desire। मतलब हमेशा 2 एग्जाम होंगे, एक एग्जाम मेन एग्जाम होंगे और एक जो होंगे वो बाद में होंगे, वो जो इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे। अगर वो इच्छा करता है, इच्छित है कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए देना है एग्जाम, देन ही विल। अप टू 12th दे विल बी मास्टर इन दियर फील्ड अकॉर्डिंग टू दियर गोल। मतलब इसका ये
जो थीम इस NEP का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका यही थीम है कि 12th तक जाते जाते बंदे में इतना स्किल डेवलप हो जाए, इतना पोटेंसी डेवलप हो जाए कि 12th के बाद वो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ और इस काम में बहुत आगे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बीटेक करके आदमी फिर बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, SSC का तैयारी कर रहा है, तो दैट इज वैल्यूलेस। अब इसमें कुछ नोट्स हैं, देखते हैं। ब्रिंग ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन बैक टू स्कूल। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उसको फिर से स्कूल लाया जाएगा। ईच ईयर दैट यू हैव स्टडी विल ऐड वैल्यू एज योर क्रेडिट पॉइंट इन गवर्नमेंट डाटाबेस। मतलब हर साल का क्रेडिट पॉइंट बनेगा, हर साल का असेसमेंट क्रेडिट पॉइंट में होंगे, जो कि आपके गवर्नमेंट के डाटाबेस में वो सेव होंगे। अब देखते हैं, एक पॉइंट हमने बताया था कि इस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या है, तो हम लोग देखते हैं इसमें मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसका मोटा मोटी कहने का मतलब है कि ये 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में कभी भी आप अगर छोड़ दें तो आपका सर्टिफिकेट, आपका डिग्री वैल्यूलेस नहीं होगा, हमेशा उसका इंपॉर्टेंस होगा। The undergraduate course will be of 3 or 4 years duration with multi-exit option. Separate certificate will be issued for every year. हर साल के लिए, हर ईयर के लिए सेपरेट सर्टिफिकेट विल बी इशूड। फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी 1 ईयर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 2 साल कंप्लीट करते हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 3rd ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 4th ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इट मीन्स अगर फुल कंप्लीट करते हैं कोर्स, तो फिर ये कंप्लीट रिसर्च डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट का भी है, 1 से 2 साल इसका प्रपोज्ड है। इसमें इंटीग्रेटेड बैचलर या मास्टर डिग्री है, ये इंटीग्रेटेड चल रहा है, ये दोनों में इंटीग्रेशन वाली पार्ट चल रही है। और इसके बाद MPhil डिसकंटिन्यू, मतलब पहले PhD करने के लिए MPhil करना होता था, लेकिन अब MPhil नहीं करना होगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि चलो भाई, एजुकेशन पॉलिसी तो सारा हम देख लिए, क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या, लेकिन ये चेंजेस लाने के लिए सबसे जो बड़ा रोल है, सबसे जो मेन रोल है, वो तो टीचर का है। तो क्या टीचर के भी कोर्सेज में कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, कुछ चेंजेज हुए हैं? तो बिल्कुल, टीचर में भी कुछ चेंजेज हुए हैं, तो हम लोग इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये 4 इयर्स B.Ed कोर्स होगा। उसके लिए जो 12th पास एप्लीकेंट हैं, जो 12th के बाद सीधे टीचर बनना चाहते हैं, तो उसे 4 साल का B.Ed कोर्स करना होगा। अगर कोई फॉर एनी एप्लीकेंट विथ हैविंग डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, अगर वो डिग्री उसके पास है तो उसे 2 साल का B.Ed कोर्स करना होगा। अगर डिग्री सर्टिफिकेट उसके पास है तो वो 2 साल का B.Ed कोर्स करके टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट डिग्री और 4 ईयर मल्टी बैचलर डिग्री और हैव ऑब्टेन्ड मास्टर डिग्री इन स्पेशलिटी, अगर 4 साल का किसी के पास डिग्री कोर्स है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो 1 साल B.Ed डिग्री करके मास्टर के लिए, टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी विल अगेन अवेलेबल ऑन नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही मुझे कुछ नया मिलेगा, जैसे ही नया कुछ आएंगे, अभी तक जितने पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर किए, मैक्सिमम पॉइंट्स आर कवर्ड ऑन ऑल इन दिस वीडियो। तो अगेन I am requesting you, please like and subscribe this Bhandar Classes channel, so that very soon we are available with next video, any updating video. Thank you.